So, good morning, student. Today, I'm teaching you social science for class 8, and this is your chapter 2nd of your geography, diverse natural resources of the world. So, in my previous video, I already covered the content of previous chapters. Now, in this chapter, we will cover first about the natural resources, land, water, forest, land use pattern, okay, how much land pattern is using India in the world and rest of the world also. Soil, we will discuss about soil also, about its types and layers and soil conservation. Then we will discuss about water and its distribution, scarcity and conservation. Then natural vegetation, depletations and conservation. जो हमारे natural vegetation है वो किस तरह से deplete होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, and how we have to conserve our resources. So, natural resources are crucial for the economic development of a region or a country. तो हमारे किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. Distribution of resources throughout the world is highly uneven. Even the distribution of land, water, and air varies from place to place on the earth. So, अगर हम रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो इवन नहीं है, वो अनइवन है. कहीं पे ज्यादा है, कहीं पर कम है. The concentration of people in the world is determined by the nature of land, climate, social, soil, water, and the other natural resources. तो डिपेंड करता है कि जो पीपल हैं वर्ल्ड में, पीपल भी देख करके रहते हैं. अगर वहाँ का वाटर प्रॉब्लम नहीं है, सॉइल अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, लैंड का नेचर अच्छा है, तो पीपल भी आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे. सो एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ इज नॉट कंडसिव फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट. लेकिन अर्थ के जो मोरओवर पार्ट है या हर कोई पार्ट पीपल के लिविंग के लिए सुटेबल नहीं है. ठीक है. Now we will discuss first about land. So land is the most important natural resource for humans as he lives on it and all his needs are fulfilled from the land. तो लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ह्यूमंस के लिए, जिससे कि बहुत सारी ह्यूमंस की जो नीड है वो फुलफिल होती है. A glance at the globe reveals that the land covers only 29% of the earth's surface and 71% is covered by the water bodies. तो अगर हम देखें तो हमारे अर्थ का जो टोटल सरफेस है लैंड पोर्शन का, 29% हम उसको यूज करते हैं जो कि लैंड पोर्शन है, और उससे भी बहुत कम पोर्शन हम यूज कर पाते हैं. एंड 71% इज कवर्ड बाय द वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ सरफेस. ठीक है. सो land area supports 6 billion peoples of the world, but its distribution is highly uneven. अगर हम अपने लैंड पोर्शन की बात करें तो इसमें 6 बिलियन पीपल रहते हैं, और जिसमें कि रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, मतलब सेम नहीं है. कहीं पे रिसोर्स ज्यादा है, कहीं पे रिसोर्स कम है. So land consists of different landforms like mountains, plateau, and the plain. Generally, plains and fertile river valleys support a large number of people as it is suitable for the farming. So the plains where the fertile rivers uh, helps to make the soil fertile, where there you found moreover peoples live, because moreover peoples are totally depend on the farming. ठीक है. सो ऐसी जगह सुटेबल होती है फार्मिंग के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा पीपल प्लेन एरियाज में आपको मिलेंगे. इन कॉन्ट्रास्ट, rugged mountain, thick forests, sandy deserts, snow-covered areas, and the low-lying areas have spare population due to tough and unfavorable condition as well topography. तो जैसे माउंटेन है, थिकी फॉरेस्ट है, सैंडी डेजर्ट है, इन एरियाज में आपको पीपल रहने को कम मिलेंगे, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं, these places are not favorable for the people. Okay. 90% of the world's total human population inhabit in just 30% of the world's land area. The rest of the area is either sparsely populated or uninhabited. तो 90% वर्ल्ड का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 30% वर्ल्ड के लैंड पोर्शन में रहता है,
ठीक है। और रेस्ट जो एरिया है अर्थ का, वो या तो रहने लायक योग्य नहीं है, क्योंकि या तो स्वैम्पी एरिया है, या डेजर्ट है, या थिकी फॉरेस्ट है, स्नो कवर्ड एरिया है। फाइन। So this is about the land. Now next, land use pattern. So land has varied uses. Generally, the land is used by man for agriculture, forest construction of house, grassland, mining construction of roads and railways, etc. तो लैंड के अगर हम पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पे मैन लैंड को यूज करता है एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट के लिए, हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ग्रास लैंड के लिए, माइनिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज में पीपल लैंड को यूज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, रोड, रेलवेज एक्सेट्रा, एंड इन टर्म एज लैंड यूज पैटर्न। तो इसी को हम लैंड यूज पैटर्न कहते हैं। The land use pattern depends on physical factor like relief of the land, climate, slope of the land and soil. तो ये जो हमारा लैंड पैटर्न है, इसके जो फिजिकल फैक्टर है ये डिफर है। डिफर कैसे है? कहीं ये डिफर डिफर लैंड है, क्लाइमेट डिफर है, कहीं पे स्लोप है, कहीं पे प्लेन है, ठीक है। डिफर डिफर सॉइल है। फाइन। सो बिसाइड दीज ह्यूमन factors like population, density, needs, and aspirations of the people, development of technology, and cost also influence the land use pattern in an area. तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ की ज़रूरतें, वहाँ के पीपल किस तरह से, वहाँ का पीपल का रहने का वो है, डेवलपमेंट क्या है वहाँ पे, किस तरह से टेक्निक के थ्रू वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करता है किसी भी लैंड के पैटर्न को, ठीक है। द यूज ऑफ लैंड चेंजेस विद टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो टाइम टू टाइम लैंड का जो पैटर्न है वो भी चेंज होता रहता है। The growing population has created an ever increasing demand of land for agriculture, housing, industries, transport, etc. तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, एज द डिमांड ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर, हाउस, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। द लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है उसके साथ लैंड तो नहीं बढ़ता, ठीक है, क्योंकि लैंड अपने आप में नॉन लिविंग थिंग है जो कि ग्रो नहीं कर सकती, बढ़ नहीं सकती। दिस हैज रिजल्टेड इन encroachments of common land to construct sloping complex houses etc. तो इसलिए लैंड जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने अपने जो लैंड है वो स्लोपिंग कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी कंस्ट्रक्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। इन माउंटेन एरियाज यू विल फाउंड पीपल हैविंग हाउसेस इन अ वेरी पीक स्लोप, काफी हाई पीक स्लोप में भी आपको वहां पे हाउसेस मिलेंगे। इन अर्बन एरियाज, इन एग्रीकल्चर लैंड, इन रूरल एरियाज, और रूरल एरियाज में भी आपको एग्रीकल्चर लैंड करने के लिए लैंड का रिक्वायरमेंट होता है। So house activities like deforestation and overgrazing, mining, and construction are responsible for degradation of land, leading to soil erosion, defertilization, and desertified fertilization means desert का हो जाना, landslides etc. तो लगातार अगर हम माइनिंग करते हैं, ओवरग्रेजिंग होती है, हाउस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इससे हमारी जो लैंड है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है इन द फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट में कन्वर्ट होने लग जाती है, और लैंडस्लाइड्स होने लग जाती है, ठीक है। सो इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विद अ डेंस पॉपुलेशन। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। सो लैंड इज नीडेड टू प्रोड्यूस फूड क्रॉप फॉर ह्यूमन बींग्स एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। तो लैंड को हमें फर्टाइल करने के लिए उसको थोड़ा सा कंजर्व करने का जरूरत है, एंड फॉर एज वी नो दैट लैंड प्रोवाइड अस फूड, ओके, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल है हमारे लिए, ओके।